Okay, so let us begin. Good evening, everyone. So we'll be completing the chapters from 9 to 16, and the topic would be the fundamental geography for today. And by today evening, we'll be done with the geography. So let us begin. If anyone have questions from previous chapters, so they can ask, else we can move towards the next chapters. I want to ask one question. What are the effects of propagation of earthquake waves on the rock mass through which they travel? Can anyone answer this question? Okay, so let us begin with the basic terms first. First one is aphelion, then perihelion, then apogee and perigee. Just describe these things. In perihelion, the Earth is nearest to the Sun, and in aphelion, it is farthest from the Sun. And perihelion is on 3rd January, and aphelion is on 4th July. And what about apogee and perigee? Apogee is the when Moon is farthest from the Earth, and perigee is when Moon is nearest to the Earth. Correct. Okay, so there is one statement: revolution affects the insolation. True, false? False. Okay, so it is a false statement. Okay, so maximum insolations are observed at which place? Subtropicals. And because in the subtropics, the temperature is less. Why so? Because the cloudiness is very less. So the insolations are highest, which increases the temperature later on. Okay, suppose there is one continent and one ocean. So both of them, ठीक है, इन दोनों में से which will just radiate more. Like किसमें insolation ज़्यादा होगा and किसमें कम? कॉन्टिनेंट में ज्यादा होगा. Okay, so that is the correct answer. Okay, so next is the difference between the conduction, convection, and advection. Okay, conduction is the transfer of heat from a hot body to a cool body, or the convection is the vertical movement of air, and advection is the horizontal movement of air. Okay. So now just tell me one thing कि जो lower layers होती है atmosphere की वो किस वजह से heat होती है? मतलब इन तीनों phenomena में से which of the कन्वेक्शन प्रोसेस ट्रोपोस्फियर में होता है और यहीं तक कन्फाइंड होता है क्या? Okay, correct. And what about troposphere? वो कौन सा phenomena से होता है? सॉरी मैम, फिर से. Troposphere जो होती है वो किस वजह से heat up होती है? स्फीयर. मैम ट्रोपोस्फियर में कन्वेक्शन प्रोसेस ही होता है ना.
जो लॉर्ड लेयर्स होती है उसमें कन्वेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड जो यू होता है वो किसका टाइप है? एबडक्शन एडवेक्शन सॉरी ये एडवेक्शन advection. Okay. Okay. Any questions? Like, if anyone have collected the PYQs as well, so we can discuss them as well together itself. Okay. Suppose there are some of the factors which can affect the temperature distribution. Okay. Just try identify कि इनमें से कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है? For example, first is sea distance. So will it impact the temperature distribution? यस And what about the ocean currents? Will it affect the temperature distribution? So water currents will also affect the temperature distribution because see, like if there is a warm current, so obviously it will heat up the continents, and if it is a cold current, so that will like that will bring the cooling situation for that particular part of the continent. And same wise latitude and altitude also affect. Next thing is, does longitude affects the temperature distribution? लॉन्गिट्यूड नहीं करता है लैटिट्यूड होता है So what longitude actually do? सॉरी मैम नहीं पता वो सिर्फ टाइम के लिए है। Yes, yes. Longitude जो है टाइम के लिए होता है, एंड जो लैटिट्यूड्स होते हैं दे आर फॉर द सीजन होते हैं। डे टाइम की जो लाइटिंग एंड ऑल होती है वो उससे इम्पैक्ट। Okay, will you carry on the joke of vacation? Anyone can carry on for 10-15 minutes now? ओके, मैं पूछता हूँ। ओके, व्हाट आर टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस? आर दे शॉर्ट रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन? जो अर्थ से जब हीट हो जाती है तो वो जो एनर्जी को रेडिएट बैक करती है उसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, और ये लॉन्ग वेवलेंथ होते हैं। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ होता है। ओके, करेक्ट मैम। एक क्वेश्चन है, which one of the following reflect back more sunlight as compared to the others? Prairies land, land covered with fresh snow, sandy desert और crop field? फ्रेश नो हाँ, यस मैम। उसका हाईएस्ट एल्बिडो होता है। ओके, व्हाट इज हाईएस्ट एल्बिडो? मतलब एल्बिडो का मतलब क्या होता है? Reflection of the sunlight. यस मैम। reflected from solar radiation which Earth does not absorb. ओके, व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट? आई थिंक इट्स जैसे डिस्टेंस के हाइट बढ़ने के साथ जो टेम्परेचर डाउन होता है उसी को बोलते हैं। हाँ, हाइट के साथ जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है वही। करेक्ट। एक स्टेटमेंट है, उसमें ट्रू फॉल्स बताना। द एरिया कवर्ड बाय वर्टिकल रेज ऑफ द सन इज ऑलवेज लेस देन द स्लांट रेज। यस करेक्ट। वर्टिकल रेज का एरिया कम होता है। हाँ, यस मैम, करेक्ट। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो ये वैसा है क्वेश्चन की जो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कहाँ मिलती है? इक्वेटर और कहाँ, मतलब इक्वेटर, टेम्परेट जोन, इक्वेटोरियल जोन, कहाँ? इक्वेटर के आसपास ही मिलना चाहिए।
क्योंकि रेन ज्यादा उधर ही होता है। हाँ सर, लेकिन इसका ये आंसर है, मतलब सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल मतलब पुअर होती है इक्वेटर पे सॉइल की क्वालिटी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेन ओनली, हाई टेम्परेचर और हाई ये ह्यूमिडिटी और हाई रेन की वजह से ही वहाँ पे फर्टाइल सॉइल कम होती है। उसके जो ऊपर जाते हैं ना हम सब ट्रॉपिकल्स में, तो वहाँ ज्यादा फर्टाइल सॉइल है। ये मतलब एक क्वेश्चन भी था PYQ ही, तो इसलिए बता दिया मैंने। वो ना उसका ऊपर का जो टॉप लेयर है ना, वो मतलब वॉश ऑफ हो जाता है रेन की वजह से, तो वो सब कंडीशन है उसकी। और उसी में एक और भी क्वेश्चन था कि जो पोलर एरियाज होते हैं वहां पर सॉइल फर्टाइल होती है या नहीं, मतलब वहां पर ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होता है या नहीं। नहीं। हाँ ह्यूमस कंटेंट हो सकता होगा क्योंकि दबा हुआ होगा, लेकिन प्लांट्स वगैरह कम होते हैं। हाँ यस सर, मतलब वहां पे क्या होता है ना, एक्यूमुलेट हो जाता है ह्यूमस, क्योंकि वहां पे जो बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है ना वो सबसे कम होती है पोलर एरियाज में। टुंड्रा रीजन उसी को बोलते हैं ना। हाँ हाँ यस सर। हाँ। What is specific heat? सॉरी मैम। Specific heat? स्पेसिफिक हीट मतलब हमें वो 1 ग्राम या सब्सटेंस को हीट अप करने के लिए उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए, वो स्पेसिफिक हीट। हाँ, 1 यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस जितनी भी हीट रिक्वायरमेंट है उसको कहेंगे शायद। Yes, exactly. And latent heat of condensation? वही 1 यूनिट, मतलब उसको कंडेंस करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, कितनी हीट लगेगी, वो कंडेंसेशन या वेपराइजेशन। हाँ, बट थोड़ा प्रिसाइज यू तो बोले कि जो हिडन एनर्जी होती है किसी भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल, फिजिकल स्टेटस चेंज हो जाता है, उसमें टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, ट्रू फॉल्स बताना। सरफेस इन्वर्जन promotes stability in the lower layers of atmosphere. फॉल्स। हाँ मैम, ये ट्रू स्टेटमेंट है। दोबारा पढ़ देता हूँ। सरफेस इन्वर्जन promotes stability in the lower layers of atmosphere. सर नहीं, ट्रू। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये स्टेटमेंट है सर, ये सरफेस इन्वर्जन promotes stability in the lower layers of atmosphere। तो ये पूछ रहा था मैं ट्रू है या फॉल्स। ओके ओके, मतलब रिगार्डिंग ट्रोपोस्फेयर। हाँ यस सर। अच्छा अच्छा, तो ये ट्रू है ना। हाँ यस सर, ट्रू। ओके, थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या इसको? हाँ, ये वो टेम्परेचर इन्वर्जन वाला है सर, इसमें वो उसका हाँ वो तो है एक्सप्लेनेशन। तो वो है, मतलब इसका जो मेन कहना चाह रहे हैं ना ये, कि जो अगर वार्म एयर जो होती है ना, जब वो वर्टिकली राइज करती है एक साथ काफी सारी, तो वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है। लेकिन जो ये टेम्परेचर इन्वर्जन होता है ना, इसमें क्या है कि अगर हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता, वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब नीचे जो है ना कोल्ड एयर आ जाती है, फिर ऊपर वार्म एयर आ जाती है।
तो वो स्टेबिलिटी क्रिएट करती है एक टाइप की, क्योंकि वो उसके लिए मतलब वार्म एयर। हाँ, बेसिक थिंग इज कि जैसे फॉर एग्जांपल रेनफॉल होने के लिए देयर शुड बी क्लाउड एंड देन देयर शुड बी प्रेसिपिटेशन। बट क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर वुड इंक्रीज, तो इंक्रीज होने के केस में क्या क्लाउड न्यूक्लियाई नहीं बनेंगे। अगर न्यूक्लियाई नहीं बनेंगे तो इसका मतलब अभी और भी क्लाउड्स बन सकते हैं, तो वो कभी प्रेसिपिटेशन होगा ही नहीं ना उस केस में। बट ऑन द अनदर हैंड इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है रेनफॉल होना। तो जैसे अगर आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा तो क्लाउड बनेंगे, एंड क्लाउड बनने की वजह से वो जो अपने सैचुरेटेड लेवल पे पहुंच जाएंगे ना जब क्लाउड, तो उसमें और पानी है ना, वो कैरिंग कैपेसिटी उसकी खत्म हो जाएगी, तो उस वजह से क्या रेनफॉल होगा। ठीक है, नाउ यू कैन लाइक ड्राइव द डिफरेंस बिटवीन बोथ। सही समझा दिया मैम ने, यही है। एक ये एमसीक्यू बोल देता हूँ, मतलब आपको आंसर बताना है इसका। द मेन रीजन दैट द अर्थ एक्सपीरियंसेस हाईएस्ट टेम्परेचर इन द सब ट्रॉपिक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर रेदर देन एट द इक्वेटर इज, व्हाट इज द रीजन? एरियाज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट ज्यादा है रादर देन ओशन। नहीं, ये मतलब विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सॉरी क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ मैं। द मेन रीजन दैट द अर्थ एक्सपीरियंसेस हाईएस्ट टेम्परेचर इन द सब ट्रॉपिक ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर रेदर देन एट द इक्वेटर। वाला पॉइंट हो जाएगा ना कि क्लाउडीनेस सबसे लेस्ट होती है वहां पे। हाँ यस मैम, क्लाउड्स लेस फॉर्म होते हैं इक्वेटर के कंपैरिजन में, इसीलिए। Okay, what are the conditions, like अगर टेम्परेचर इन्वर्जन होगा तो हाउ कैन यू नो कि यस देयर इज अ टेम्परेचर इन्वर्जन? क्या कंडीशंस है उसकी? इसमें लॉन्ग विंटर नाइट्स प्लस क्लियर स्काईज प्लस काम एयर। यस, सेम लाइक जैसे फ्रॉस्ट एंड ड्यू रहते हैं तो उसमें भी ऐसी ही होती है, क्लाउडी नाइट्स होना चाहिए, स्काई क्लियर रहना चाहिए, सो सेम लाइक। जो फ्रॉस्ट और ड्यू है मैम, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है, मतलब उन दोनों की कंडीशंस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डिफरेंस रहता है। हाँ, उसमें जो है ड्यू है उसमें अबव होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट से, और जो फ्रॉस्ट है उसमें बिलो या इक्वल होना चाहिए। ओके, वी वर डिस्कस चैप्टर, क्या ये कौन सा चैप्टर था जो भी इन्वर्जन एंड ऑल डिस्कस हुआ? ये 9 चैप्टर है मैम। तो 10th पे चले, हो गया 9th अगर डिस्कस तो? हाँ यस। ठीक है, ओपन योर 10th चैप्टर और जो भी प्लीज की पास की। हेडली सेल कहाँ फॉर्म होता है? हेडली वही है, वो जो डॉल्ड्रम्स वाला होता है ना, इक्वेटर टू सब ट्रॉपिकल एंड फिर सब ट्रॉपिकल टू जो उससे ऊपर वाला होता है वहां पे फेरल सेल हो जाते हैं। हाँ यस मैम। Whereas doldrums and horse latitudes, these are easy terms, right? If anyone just can tell me easily, doldrum क्या होते हैं? जो होता है वहाँ पे जो साउथ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की विंड होती है और नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की विंड होती है, दोनों आके मिलती है और वहाँ पे जो है वेदर जो है बहुत ही वो हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे डोलड्रम मतलब बहुत शांत जगह रहती है, पॉकेट्स बन जाते हैं दोनों इक्वेटर पे डोलड्रम्स के, 0 to 5 डिग्री लैटिट्यूड बोथ।
करेक्ट एंड ऑल्सो लाइक जैसे कॉरियोलिस फोर्स नहीं होता है, डाइटिस दैट भी बहुत ज्यादा वीक रहते हैं इक्वेटर पे, तो दैट इज ऑल्सो रीजन कि साइक्लोन नहीं होता है वहाँ पे। ये जो डोल ड्रम्स होते हैं ये सब ट्रॉपिक्स पे बनते हैं या इक्वेटर पे? इक्वेटर पर होते हैं, 0 to 5 डिग्री। इक्वेटर पे बनते हैं एंड जो सब ट्रॉपिकल वाला होता है उस पे हॉर्स लेटिट्यूड होता है क्योंकि वो हाई प्रेशर का बेल्ट रहता है, तो दैट ऑल्सो गिव्स द राइज टू द फेरल सन। जैसे कि स्टेटमेंट है, द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मच larger than that of the horizontal pressure gradient force. करेक्ट। हाँ, yes मैम। Okay, what are geostrophic winds? जीएफ के बिल्कुल पैरेलल में विंड चलती है तो उसे ही को जियोस्टॉपिक विंड कहते हैं। हाँ यस सर। हाँ मतलब ये वही पॉइंट है जहाँ कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट है ना, वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं, तो फिर वो पैरेलल चलने लग जाती है। जियोस्ट्रॉफिक विंड उस मतलब इतनी हाइट पे होती है जहाँ पर फ्रिक्शनल जो विंड्स होती हैं वो 0 हों। अच्छा, अगर सी से लैंड की तरफ कोई विंड चल रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सी ब्रीज। डे टाइम या नाइट टाइम? डे टाइम। हाँ यस मैम। लैंड ब्रीज होती है, लैंड दूसरी का चलती है, वो नाइट में चलती है बिकॉज रात में लैंड बहुत ही तेजी से ठंडे होते हैं और सी उतना तेजी से टेम्परेचर लूज नहीं कर पाता है। ओके मैम। अच्छा, जो एडियाबैटिक विंड्स हैं और कैटाबैटिक विंड्स हैं, इन दोनों में से कूल विंड कौन सी है और हॉट विंड कौन सी है? कैटा शुड बी कॉल्ड, एडियाबैटिक शुड बी वार्म। कैटाबैटिक वाली जो है जाता है ना, एयर ड्रेनेज होता है उसमें, माउंटेन्स एंड वैलीज में। हाँ यस मैम, करेक्ट। कैटाबैटिक कोल्ड और एडियाबैटिक वाली वार्म। अच्छा, व्हाट इज ऑक्लूडेड फ्रंट? ऑक्लूडेड फ्रंट जिसमें एयर राइज हो जाते हैं। हाँ यस मैम। इसमें क्या होता है, जो वार्म वाला मतलब जो कोल्ड फ्रंट होता है ना, वो वार्म वाले को ओवरटेक कर लेता है। कोल्ड क्या बोला मैम? जिसमें जो कोल्ड वाला होता है वो वार्म को एकदम रिप्लेस कर देता है, आई गेस ये वाला होता है ना ऑक्लूडेड। हाँ यस मैम, जिसमें मतलब दोनों आपस में टकराए और जो वार्म एयर वाला है वो ऊपर चला जाए और वो उसकी प्लेस मतलब ले ले नीचे से कोल्ड। यस। Difference between tropical and temperate or like also called extratropical cyclone. So what is the difference between both? हाँ, जो ये सॉरी
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये मेनली हमारे जो इक्वेटर के आसपास वाले हैं वहां बनते हैं, और जो मिडल लैटिट्यूड में मतलब 30 to 40 डिग्री में बनेंगे वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होंगे। और जो इनकी डायरेक्शन होती है वो जैसे जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनकी वेस्ट टू ईस्ट होगी और ट्रॉपिकल की होगी ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन जो जो ये होते हैं ना ट्रॉपिकल होते हैं वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो सिर्फ सी में बनेंगे और वो लैंड पे आके खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो ये दूसरे वाले हैं वो मेन लैंड पे भी काम करते हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो लैंड पे भी बन सकते हैं और सी पे भी बन सकते हैं, और वो उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं। और ये लो प्रेशर जोन होता है बीच में, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं इसमें हाई प्रेशर में होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को की फॉर्मेशन के लिए 27 डिग्री अबव टेम्परेचर चाहिए सी सरफेस का। एंड जो लो प्रेशर जोन होता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन में होता है, और जो हाई प्रेशर जोन होता है वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में होता है। करेक्ट। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन, जो सैलिनिटी होती है वो कौन से हेमिस्फीयर में ज्यादा होती है? इज इट नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न। Anyone else want to try this one? So wait, जिन्होंने नॉर्दर्न वाला आंसर दिया है क्या रीजन है उसके पीछे? लैंड मास है क्या उसका रीजन? हाँ, लैंड मास एंड नॉर्दर्न रीजन में मैक्सिमम रिवर्स फ्लो करते जो ओशन में जाके सी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सी वाटर बॉडीज में मिक्स होती है। आई थिंक यही रीजन है। अगर मैम ये लैंड मास वाला मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता सैलिनिटी का, वो भी हो सकता है। लेकिन जो वो वाला रीजन है कि साउदर्न हेमिस्फीयर के जो ओशियंस होते हैं वो वार्म होते हैं, तो वो वाली कंडीशन लगाएंगे तो सैलिनिटी वहाँ ज्यादा होगी। हेमिस्फीयर में रिवर भी मतलब कि कम होती हैं, तो वहाँ पे रिवर का भी फ्रेश वाटर की कमी भी रहती है, तो इसलिए वहाँ सैलिनिटी ज्यादा हो सकती है। एक्चुअली सैलिनिटी साउदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होती है देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, देयर आर टू थिंग्स, जस्ट कंसीडर इट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, बट डजंट मीन कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो उस वजह से सैलिनिटी भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर नॉर्दर्न में ज्यादा होता है बट सैलिनिटी साउथ में क्यों ज्यादा होती है? वाई सो? क्या रीजन है उसके पीछे? द रीजन इज द वेस्टर्लीज प्लस ओपन ओशंस। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको ऐसा ओशंस नहीं मिलते, वहां पे लैंड मास ही होते हैं। ठीक है, तो एक चीज है, अगर लैंड मास ज्यादा होगा तो वहां पे सैलिनिटी कैसे होगी? पानी में ही बनेगा ना, नमक तो आफ्टर ऑल पानी में ही बनेगा। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में इतना ज्यादा वाटर होता है, प्लस वहां पे क्या इशू है ना, वेस्टर्लीज होती है, उनको आराम से फ्लो करने के लिए ना दे गेट इनफ स्पेस। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी नॉर्दर्न में स्पेस ही नहीं होता उनके पास, तो साउदर्न में वो आराम से फ्लो करती है। सभी ने सुना होगा ना वो रॉकिंग 50s, फ्यूरियस 50, वो सब सुना होगा ना नहीं, जो वेस्टर्लीज के नेम होते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो दे एड द वाटर मूवमेंट एंड द विंड मूवमेंट। तो जितनी विंड मूव करती है ना स्पीड से, उसकी वजह से वहां पे प्रेसिपिटेशन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, एंड ट्रांसपिरेशन या बेटर कॉल इट इवापोरेशन वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसकी वजह से जितनी स्पीड होती है ना उसकी, तो उसकी वजह से जो सैलिनिटी है ज्यादा होती है। इसको टेम्परेचर वाले पॉइंट से ना लिंक करके ना ट्राई लिंकिंग इट विद द वेस्टर्लीज। वेस्टर्ली इसका बेसिक रीजन है। ओके मैम। माइट बी स्टिल मेनी ऑफ यू आर नॉट कन्विंस्ड। ओके, माइट बी। तो उस केस में क्या करना, जिसको भी कंफ्यूजन है, एक बार ना लाइक बहुत पहले मृणाल सर ने एक लेक्चर डाला था खुद के यूट्यूब चैनल पे
एक बार आप उसको गो थ्रू करना, ठीक है। उन्होंने जिस तरीके से समझाया, ये वेस्टर्लीज वाला कॉन्सेप्ट लेके उन्होंने समझाया हुआ होगा वहां पे, आप एक बार उसको ना विजिट करना, ठीक है। सो दैट अगर कोई उसको टेम्परेचर से लिंक कर रहा है तो उनको समझ आएगा कि टेम्परेचर होने से ही खाली सैलिनिटी वहां की इंक्रीज नहीं हो जाती, ठीक है। मतलब इन केस किसी को भी कंफ्यूजन है तो एक बार वो विजिट कर लेना। एंड मोर ओवर आई विल पोस्ट द लिंक एज वेल, ठीक है। इन केस मुझे मिलता है तो आई विल पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्लाउड इन द स्काई? क्यूमुलस, निम्बस, स्ट्रेटस और सिरस? सिरस। हाँ, यस, सिरस। अच्छा, एक ही क्वेश्चन है, द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और सैचुरेटेड एयर? जस्ट रिपीट वंस अगेन। सैचुरेटेड एयर। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और सैचुरेटेड एयर? ह्यूमिडिटी सैचुरेटेड। हाँ, सैचुरेटेड है मैम इसका आंसर। एक क्वेश्चन है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड लीस्ट ओवर द ओशंस, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ओशन पे ज्यादा होता है। हाँ, यस, ओशन पे ज्यादा होगा। What is the direction of wind around a low pressure in the northern hemisphere? ईस्ट टू वेस्ट। हाँ, यस मैम। And in the higher latitudes, that would be westerlies, no? So westerlies direction there would be. Okay, मैम। Salinity in the northern sea is very less. True or false? फॉल्स, वहाँ ज्यादा है ना सैलिनिटी। Because of the reason, exact reason I want. Because of the North Atlantic drift. ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो काफी वार्म रहती है, तो उस वजह से बहुत ज्यादा सलाइन वो हो जाता है। ओके, एंड व्हाट अबाउट द मेडिटेरेनियन सी? व्हाट इज द लेवल ऑफ सैलिनिटी? हाँ, वहाँ भी हाई है वो, वहाँ वो क्या है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है। बाल्टिक? बाल्टिक आई थिंक लेस सैलिनिटी, पोलर रीजन है ना। Is the reason? पोलर क्लोज टू पोलर रीजन आई थिंक। करेक्ट। एंड ऑल्सो लाइक लो फ्लक्स रहते हैं वहां पे, जैसे जो सैलिनिटी काफी कम हो जाती है, तो उसका रीजन एक और क्या है, रिवर इनफ्लक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे बे ऑफ बंगाल है, सो बे
pole mein there are many fresh river water just draining into that. And what about the Black Sea? Again, fresh river water. So there would be salinity. Which one? High or less? Less. Less. Cool. Okay, now just fill up. Okay, try to fill the gap. If there is a high salinity because of the high depth, okay, as you go deep down, you will be finding the high salinity. So this is called as, like, what is the name of that phenomena? Halocline. Yeah, so it is called as halocline. Okay, yesterday we also discussed about the Karman line. So anyone can throw some light on this? Karman line is the boundary after which the space starts. मतलब the boundary between atmosphere, Earth's atmosphere and the space. Correct. And what is the Great Red Spot? एक्चुअली जुपिटर जो प्लैनेट है, ठीक है, तो जुपिटर पे काफी ग्रेट रेड स्पॉट्स बने हुए हैं, तो उस वजह से ग्रेट रेड स्पॉट बोला जाता है जुपिटर प्लैनेट को, ठीक है. बट रेड प्लैनेट एंड ब्लू प्लैनेट वो कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज विच वन इज द ब्लू प्लैनेट? हाँ, अर्थ. एंड व्हाई अर्थ इज कॉल्ड एज ब्लू वन? ये ओशंस की वजह से, मतलब वो स्पेस से ओशंस दिखते हैं ना. ओके, यस, बिकॉज जो अर्थ है उसमें 3/4 पार्ट जो है वो पानी का है, ठीक है, 3/4. जस्ट रिमेम्बर दिस. ओके, so if we talk about equator and tropics, salinity ज्यादा कहाँ होगी? If we talk about equator and tropics, हमें ज्यादा होगी इक्वेटर पे कहाँ होगी? इक्वेटर पे. इक्वेटर पे क्यों ज्यादा होगी? जस्ट थिंक ना, रेनफॉल होती है वहां पे, तो डेली थंडर स्टॉर्म एंड डेली रेनफॉल होती है, तो वहां पे सैलिनिटी ज्यादा कैसे हो जाएगी? लाइक आर यू रिलेटेड दिस फैक्ट विद द सन कि सन है तो वहां पे रेनफॉल ज्यादा हो जाएगी? इज इट? मतलब सन है तो वहां पे सैलिनिटी ज्यादा हो जाएगी? नहीं, ट्रॉपिक्स पे ही ज्यादा होगी. हिस्ट्री पढ़ा था इसलिए. नहीं, देखो, जहाँ पे ज्यादा डेंसर वाटर रहेगा ना, अपन अपन इसके लिए ना एक फेनोमेना याद रखते हैं. बहुत सिंपल सा फेनोमेना है, अटलांटिक ओशन गायर का. अटलांटिक ओशन गायर के बारे में किस किसको पता है? एमओसी हमारे इंडियन ओशन के लिए भी बड़ा स्पेसिफिकली आजकल इम्पोर्टेंट हो चुका है रिसेंट डिस्कवरीज में. होता क्या है उसमें? आपका वाटर पुश होता है इक्वेटर से पोल की तरफ. पोल पे जाके जो वार्मर वाटर है वो क्या करता है? वो नीचे के कोल्डर वाटर को रिप्लेस करने जाता है. जो कोल्डर वाटर है वो ऊपर आ जाता है. अब ये जो कोल्डर वाटर है ये होता है सलाइन. सेंस ये है कि अगर आपको कभी भी ये पता करना हो कि मेरा सलाइन वाटर मुझे कहाँ ज्यादा मिलेगा, it would be there where we have more dense or more cold environment for water to persist in. That is, एक durable cold environment या durable dense environment होना चाहिए. एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ते हैं ना, तो वो थोड़ा साइंटिफिक साइड पे चल जाएगा, इसलिए अपन उस पर नहीं जाते. कैसे, क्यों, क्या है रीजन, सिंपल याद रखना. या तो डेंस हो, और डेंस याद नहीं आ रहा हो कि डेंस कैसे फिगर आउट करना है, तो सिंपली कोल्ड हो. दैट इज द रीजन. जब हमने अभी डिस्कस करता कि सदर्न और नदर्न में, तो नदर्न में हीटिंग भी ज्यादा होती है, राइट. वी हैव लैंड एंड वाटर टेम्परेचर डिफरेंस. ये बहुत सारे अलग अलग डिफरेंसेस. इस कारण से वी हैव मोर हीट क्वांटिटी और लेटेंट हीट इन नदर्न कंपेयर्ड टू सदर्न. इससे सदर्न में क्या रहेगा? ज्यादा सैलिनिटी. ऐसे ही अब हम लैटिट्यूड बस जाए, तो जिस लैटिट्यूड पे हम जा रहे हैं हमें देखना है कि कितना दूर इक्वेटर से वहां पे ज्यादा कोल्ड सिचुएशन आ रही है. अगर वहां पे ज्यादा कोल्ड सिचुएशन आ रही है, वी विल हैव मोर सैलिनिटी. सो थंब रूल बना लो, मोर कोल्ड मोर सलाइन वाटर.
वेल डन सनशाइन. सो इन दैट केस इक्वेटर ट्रॉपिक्स में कहाँ ज्यादा होगा सैलिनिटी? पे ज्यादा होगी सैलिनिटी ना, इक्वेटर पे कहाँ होगी? ओके, इक्वेटर पे सैलिनिटी ज्यादा नहीं होगी. ठीक है, जस्ट रिमेंबर रेनफॉल वाला पॉइंट भी है वहाँ पे. ठीक है, एंड ट्रॉपिक्स अगेन थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सैलिनिटी आएगी. ओके, एंड व्हेन यू मूव टुवर्ड्स पोल, अगर पोल और इक्वेटर पे कंपैरिजन किया जाएगा तो पोल पे ज्यादा सैलिनिटी होगी. एज सनशाइन कॉटेड की टेम्परेचर कम होगा तो वो डेंस हो जाएगा. तो डेंस वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द सैलिनिटी. करेक्ट. जो इक्वेटर पे हम लोग देखो इक्वेटर को इस पर्टिकुलर थ्योरम में मान लो एक्सेप्शन. इक्वेटर पे क्या होता है, वी हैव अ कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ईस्टर्लीज हमने सबने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भाई ईस्टर्लीज वापस से रिवाइज करेंगे तो ईस्टर्लीज से समझ में आएगा कि भाई वो टेम्परेट से जाता है, सॉरी अपना आपका ट्रॉपिक से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आ जाता है कहाँ पे, इक्वेटर साइड. सो उस करंट से हमारा डेवलप होता है इक्वेटोरियल करंट. ये जो इक्वेटोरियल करंट है ना, ये लगातार क्या रहता है, मूवमेंट में बना रहता है, बिकॉज इट इज मूविंग, इट इज नॉट स्टेबलाइजिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम compared to tropics, where tropics में there would be a moment or there would be a situation when the water can rest. जो resting part है ना यहाँ पे, बस वो resting part density से relate हो गया ना. मैंने बोला ना dense यहाँ पे प्राइमरी है. अब वो dense क्यों हो रहा है, उसके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, मेनली तो कोल्ड. तो इक्वेटर को एक्सेप्शन की तरह याद रखो, लीस्ट सलाइन वाटर रहेगा इक्वेटर पे. उसके अलावा सब जगह पे यही थंब रूल है, सिंपल सा. जहां जहां जैसे जैसे आप कोल्ड होते जाओगे वाटर में, आपको वैसे वैसे ज्यादा सैलिनिटी मिलती जाएगी. Okay, so what about the salinity status in the Arabian Sea and Bay of Bengal? अरेबियन सी में ज्यादा सैलिनिटी है और बे ऑफ बंगाल में कम, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ मैनी रिवर्स. Yes. Basic differences between the spring tide and neap tide. Spring tide and neap tide. जो स्प्रिंग टाइड है वो सीजी की पोजीशन में होती है, जब मतलब सन मून और ये अपना अर्थ जो है स्ट्रेट लाइन में हो. और जो नीप टाइड है वो क्वाड्रेचर पोजीशन में होती है, जब वो राइट एंगल पे होंगे, सन मून और अर्थ, सन और मून. और जो स्प्रिंग टाइड्स होती है वो हायर होती हैं और लोअर टाइड, नीप टाइड्स लोअर होती हैं इनसे. Okay, so tides ज़्यादा कम होंगी जब there would be perigee और apogee. पेरिजी. Okay, and what are the forces behind the tides? ये सन मून का ग्रेविटेशन फोर्स और अर्थ का भी एक लगता है सेंट्रीफ्यूगल. मैं भी पूछ लो एक स्प्रिंग और नीप से रिलेटेड. हाँ यस सर. स्प्रिंग और नीप का साइकिल बता दो कोई, मतलब
कौन से मून पे या कितने दिनों में स्प्रिंग आती है, कितने दिनों बाद नीप आती है, और पैरेलली मून का क्या स्टेटस रहता है। ये सर 15-15 दिनों में आएंगे। 15 तो नहीं, वेट, हाँ मतलब 15 दिनों बाद वो स्ट्रेट पोजीशन में आते, तो ये सर हाफ मतलब 7-8 दिन के करीब में दोनों आएंगे, और 15-15 में वो आएगा स्प्रिंग, और नीप आएगा, गलत बोल गया, मतलब जो ये सॉरी, सही जा रहे हो। हाँ मतलब जो 15, जो जैसे अमावस और जो पूर्णिमा होती है वो वाली स्प्रिंग वाली होती हैं, वो स्ट्रेट लाइन वाली, और फिर जो उसके बीच में जो दिन होते हैं 15-15 के साथ साथ वाले, वो नीप टाइड। मतलब महीने में 4 बार होंगे, 2 बार स्प्रिंग और 2 बार नीप। करेक्ट। सो जैसा मैं बताया ना, पूर्णिमा अमावस्या है, सिंपली न्यू मून फुल मून है, तो इन दोनों दिन रहेगा आपका स्प्रिंग टाइड, विच इज द हाईएस्ट और किंग टाइड। उसके बाद जो साइकिल है, तो साइकिल कैसे रहती है, वी हैव अ न्यू मून, उसके 14 डेज के बाद वी हैव अ फुल मून, अगेन 40 डेज बाद वी हैव अ न्यू मून। सो इसी साइकिल के बीच में वी हैव अ नीप एंड स्प्रिंग टाइड्स प्लेस्ड। सो न्यू मून के दिन रहेगी स्प्रिंग टाइड, 7 दिन बाद वी हैव अ नीप टाइड, देन अगेन वी हैव अ फुल मून, तो एक स्प्रिंग टाइड, देन 7 दिन बाद एक नीप टाइड, एंड देन ये साइकिल चलता रहता है। सो ब्लू मून क्या होता है? बता दीजिए सर। ब्लू मून मतलब द सेकेंड फुल मून ऑफ मंथ, ठीक है। सो राइट, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब एक ही महीने में भी आएगा सेकेंड फुल मून, इट्स अ ब्लू मून, एंड उस दिन की टाइड भी स्प्रिंग टाइड, राइट। थोड़ा सा वही है, एस्ट्रोनॉमिकल है, सो बेटर है कि टाइड सिस्टम्स को हम इसके थ्रू देखें। चलो, उसके अलावा अभी टाइड्स में थोड़ा सा और घूमते हैं। शोर्स के बारे में बात हो गई, ऑन शोर ऑफ शोर। नहीं सर। आप जो भी एजेंडा है उसके अकॉर्डिंग चले, फिर अगर नहीं तो स्पेस है तो फिर अपन डिस्कस करते हैं। जो कर आप कैरी ऑन करो आप। ओके सर। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर एब्सेंट एट इक्वेटर बिकॉज ऑफ रीजन। फोर्स वहाँ पे जीरो होता है, जीरो होता है। यस सर। ये टाइडल पोर्ट्स और नॉन टाइडल पोर्ट्स में क्या डिफरेंस है? पोर्ट, टाइडल पोर्ट वहाँ पे होते हैं जहाँ पे जो टाइड्स आते हैं, और फिर जो नाव, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं वो आसानी से आ जाती हैं। जैसे कांडला अपना टाइडल पोर्ट है, और नॉन टाइडल पोर्ट में जो जहाँ पे टाइड्स नहीं आती और शिप्स नहीं आ पाती सी। हाँ करेक्ट सर। टाइडल
हाँ, बता दीजिए सर। अरे नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था कि नॉन टाइडल में पक्के से टाइडोइड्स नहीं आती ना कुछ भी। हाँ, मतलब जो टाइडल हैं वो वही हाई टाइड्स वाले होते हैं, और जो नॉन टाइडल हैं वो बेसिकली जो रिवर्स होती है ना उनसे होते हैं, और वो थोड़े लो भी होता है, उनमें थोड़ा उनकी डेप्थ कम होती है। बढ़िया। हाँ, सो ये कि टाइडल पोर्ट्स में, हाँ ये बिल्कुल सही है। टाइड देखो सब जगह पे आनी है, ऐसा तो है नहीं कि एक शैडो रीजन तो होगा ही होगा। सो ऐसा नहीं है कि टाइड्स आती नहीं है, अगर वाटर कांटेक्ट है थोड़ा बहुत तो हो सकता है मूवमेंट हो, बट मोर फोकस ये है कि इनमें इम्पैक्ट पड़ता है टाइड्स का। सो इनकी ज्योग्राफिक इम्पोर्टेंट है, जैसे जो सर ने बताया। इट्स लोअर एल्टीट्यूड, मोर obstructed हो। जैसे हम लोग का जो पूरा वेस्टर्न कोस्ट है, इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ व्हाई वी हैव मोर टाइडल पोर्ट्स ऑन दैट साइड, बिकॉज शोर की जो लेंथ है या हाइट है, दैट इज मोर फ्रॉम कंपेयर टू योर वाटर लेवल। तो टाइड्स वहां पे आएगी, हाई टाइड मतलब हाई टाइड रहेगी, सो इट हैज अ मोर इम्पैक्ट देन जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, बिकॉज वहां पे वी दिस आर पेनिनसुला और द बॉटम पेनिनसुला is little bit tilted. So क्योंकि वहां पे नीचे shore है, it has the facility to kind of regulate the tide. So आगे चलते हैं। हाँ, यस करेक्ट सर। ये एब करंट और फ्लड करंट क्या होता है? ये दोनों टाइडल करंट्स हैं, और एक जो होता है वो सी की तरफ जाता है और एक कोस्ट की तरफ आता है। तो कौन सा है, मतलब इन दोनों में से फ्लड करंट कौन सा और एब करंट कौन सा है? करंट जो है वो सी की ओर जाता है, और ये जो फ्लड करंट है वो कोस्ट की ओर आता है। करेक्ट सर। अच्छा, एफ फेज में मतलब ये बिल्कुल सही है। देखो फ्लड, फ्लड का मतलब क्या रहता है ये ना कि हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट। सो फ्लड मतलब लैंडवर्ड साइड हो गया, अच्छा है, यही याद रखना है। अच्छा, फ्लड में टाइड, या फिर सिंपली बोले हाँ टाइड राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है? राइज करेगा सर। करेक्ट। सो जो फ्लड करंट है, दो कैरेक्टरिस्टिक हुई, एक वो लैंडवर्ड रहती है, सेकंड उसका काम है राइजिंग, राइट। बढ़िया। और किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। सबसे ऊंचे टाइड कहाँ पे आते हैं? ये फंडी वाला है क्या? फंडी। सही सही। हाँ, कनाडा और वो जो अमेरिका का बॉर्डर एरिया है वहाँ पे। ओके सर। सिजी क्या होता है? SYZYGY, CZ। सर जब वो सन मून एंड अर्थ स्ट्रेट लाइन में हो, सीजी की पोजीशन बोलते हैं उसे।
अच्छा, टाइड मतलब अराउंड द ईयर रहते हैं या कुछ क्वार्टर्स में ही रहते हैं? That is मतलब if I'm living on in Kandla, would I be observing tides on a regular basis or only on in few quarters of the year or months? पूरे साल रहते सर। Because again moon का इफेक्ट पूरे साल रहना है ना, तो टाइड्स भी ऑलमोस्ट फुल ईयर रहती है। ठीक है, इसके बाद फंडे भी डिस्कस हो गया। ट्वेंटी किस ओशियन में ज्यादा है, मतलब कि इंडियन ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में कि अटलांटिक ओशियन में? क्या ज्यादा है? लेंटी किस ओशियन में ज्यादा है, इंडियन में कि पैसिफिक में कि अटलांटिक में? ज्यादा क्या है सर, समझ में नहीं आया, सॉरी। सैलिनिटी वो बोल रहे कि सैलिनिटी अच्छा, सैलिनिटी अटलांटिक में। ये इंडियन ओशियन में सैलिनिटी ज्यादा है सब, बिकॉज वो थोड़ा सा तीनों ओर से क्लोज है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, ओके सर। कम किस ओशियन में है सैलिनिटी? पैसिफिक में। करंट अप, हाँ पैसिफिक है सही सर। कोल्ड करंट अपवेलिंग क्या होता है, कोई डिस्क्राइब करेगा? वाटर अपवेलिंग। हाँ सर, जब वो जो कोल्ड वाटर होता है ना नीचे का, तो वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है, क्योंकि जो ऊपर का वार्म वाटर है वो किसी विंड या किसी वजह से वहां से हट गया है, तो उसको हम अपवेलिंग बोल देते हैं। और फिर जो दूसरी तरफ होगा, जहाँ पे मतलब अपवेलिंग हुई है, फिर जिस साइड वो वाटर गया है तो दूसरी साइड में डाउनवेलिंग हो जाएगी। डिजर्ट पाया जाएगा, प्लेन पाया जाएगा, कि मतलब कि अगर उसके कोस्ट पे क्या पाया जाएगा, डिजर्ट, प्लेन या कुछ लैंड, क्या? वहाँ अपवेलिंग में सर फिशिंग ग्राउंड अच्छा बनेगा, अपवेलिंग में। वहाँ पे डिजर्ट एरिया पाए जाएंगे, जितने भी मतलब अपने डिजर्ट एरिया है वो ज्यादातर कोल्ड अपवेलिंग के जो में पाए जाते हैं, जैसे सहारा भी देख लिया जाए, या जो ओके सर। कोपिन का क्लासिफिकेशन हो गया? नहीं सर, नहीं हुआ, बता दीजिए। मेनली कोपिन ने A B C D E F करके
चार उसमें ABCDE करके 5 भाग में बांटा था। और ए मतलब कि जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा अधिक होती है और डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो वो ए पार्ट में था। फर्दर इसको भी उन्होंने 3 पार्ट में भी बांट दिया था। तो प्रेजेंटली मेरे पास बुक नहीं तो मैं ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाता। अगर किसी के पास बुक हो तो उससे प्लीज एक्सप्लेन करें। हाँ, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। ये जो ए ग्रुप है उसमें ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है और वो मेनली ट्रॉपिकल में आता है। उसके 3 टाइप्स हैं, ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल मॉनसून और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। दूसरा है बी, ड्राई क्लाइमेट। इसमें आ जाएंगे सब ट्रॉपिकल स्टेपे, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड स्टेपे और मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। और तीसरा है सी, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट्स। ये मिड लैटिट्यूड्स पे होते हैं बेसिकली। और इसमें आ जाएंगे आपके जो टाइप्स हैं, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरियन और मैरीन वेस्ट कोस्ट। और फिर डी में है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स। इसमें 2 हैं, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल और सब आर्कटिक। और फिर ई में है कोल्ड क्लाइमेट्स। इसमें आएंगे तुंद्रा और पोलर आइस कैप। फिर आखिरी है हाईलैंड जो स्नो से कवर होंगे। ओके सर, ओके। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ये हुआ कि नहीं, कितने टाइप्स की रेनफॉल होती है? सर 4 टाइप्स के आते हैं। ये कन्वेक्शनल रेनफॉल और ओरोग्राफिक, ये माउंटेन्स पे होती है। और एक साइक्लोनिक रेनफॉल और एक फ्रंटल रेनफॉल जो एयर मासेस की वजह से होती है। और ये कन्वेक्शनल वाली होती है सिंपल, जो वार्म एयर राइज करेगी, क्लाउड्स बनाएगी और फिर प्रेसिपिटेशन करेगी। ये मेनली इक्वेटर रीजन में होती है। टेम्परेट रीजन पे होती है वो जो आपने बताया फ्रंटल रेनफॉल। हाँ, यस। इक्वेटोरियल में 2 आ जाएंगे, कन्वेक्शनल और साइक्लोनिक। और फ्रंटल में जैसा आपने बताया टेम्परेट। इक्वेटोरियल में ज्यादातर वो कन्वेंशनल ही होती है, बट जैसे ही हम डोल्ड्रम वाले एरिया से बाहर निकलते हैं 10 डिग्री टू 30 डिग्री के पास, तब वहां पे ये साइक्लोनिक रेनफॉल चालू हो जाती है। में ज्यादातर जो रेनफॉल होती है वो साइक्लोनिक रेनफॉल ही होती है। ओके सर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड की जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे साइक्लोन ज्यादा आते हैं और वेस्टर्न कोस्ट पे कम आते हैं? इसका कोई एक्सप्लेन कर सके तो बढ़िया से, तो कोई बता दे। ठीक है। अच्छा, हाँ जो कर आप बोलो। नहीं, आप बता दो सर। बता दीजिए, बता दीजिए। सो जैसा हमने अभी डिस्कस करा कि एक तो सबसे प्राइमरी रीजन हमें साइक्लोन की फॉर्मिंग कंडीशन पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि है 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए उसको फॉर्म करने के। राइट, ये 27 डिग्री सेल्सियस कहाँ ज्यादा फाउंड होगा? ये बे ऑफ बंगाल में ज्यादा फाउंड होता है। तो प्राइमरी रीजन व्हाई वी विटनेस मोर cyclones in eastern coast is because Bay of Bengal का जो temperature है it is higher and near 28 degree throughout the year, जो कि अरेबियन सी में जनरली नहीं रहता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं रेनफॉल पे। सो वी नो कि भाई जो रेनफॉल है
राइट, उस कारण से एक वर्टिकल विंड शेयर बनेगा, तो एज वेल एज एक ह्यूमिडिटी भी प्रोड्यूस होगी. नाउ दिस रेनफॉल इज मोर ऑब्जर्व्ड इन बे ऑफ बंगाल देन अरेबियन सी, राइट, क्योंकि अरेबियन सी में आपका साउथ वेस्ट मानसून जरूर आ रहा है, बट साउथ वेस्ट मानसून एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट मानसून, वी हैव टू बिग मानसून विंड्स बोथ क्रॉसिंग ओवर बे ऑफ बंगाल, है ना, इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम. इस कारण से बे ऑफ बंगाल में रेनफॉल भी ज्यादा होती है, विच सर्व्स एज अ बेटर टेम्परेचर कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन. और जो थैंक यू. तीसरा है ये, हाँ हाँ बोलो. कंटिन्यू रहिए सर. हाँ, आप कुछ बोल रहे थे सर. फर्दर एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो कंटिन्यू रहिए. नहीं, और बाकी उसके अलावा जो एक और छोटा सा है वो ये है, ये थोड़ा सा आई थिंक ज्योग्राफिकल, जो किसी का हो तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, दैट एक नेचुरल एडवांटेज है बे ऑफ बंगाल में, वो ये कि उसमें एक डिप्रेशन है ऑलरेडी, ट्रॉपिकल डिप्रेशन, राइट. सो ये जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, जो कि आपके अलग अलग वाटर बॉडीज के थ्रू जो उसको ट्रांसफर हो रहा है अच्छा खासा विंड मास, राइट, एंड इस मास के कारण ये नेचुरल एडवांटेज लेके बे ऑफ बंगाल ज्यादा फॉर्म करता है साइक्लोन. थोड़ा ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई हो बता पाएगा, समझा पाएगा, बट उसको एक लेमन टर्म्स में देखे तो यही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर्स, बिकॉज दे ड्रेन देयर वाटर इन बे ऑफ बंगाल, it leads to more water mass compared to Arabian Sea, पहला, which creates a natural advantage called tropical depression in Bay of Bengal, which is the reason why cyclones अच्छे खासे बनते हैं Bay of Bengal. हाँ सर, और एक ये जो ईस्ट कोस्ट पे ही जाते हैं, वो ये ईस्टर्लीज है ना, जो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, उसकी वजह से ये ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, तो ये बेसिकली यही ईस्ट कोस्ट पे ज्यादा आते हैं. एग्जैक्टली क्योंकि जो ईस्टर्न साइड होती है ना, वहां पे बहुत ज्यादा वाटर रहता है, प्लस मॉइस्चर इज देयर, सो एज सुन एज इट मूव्स टुवर्ड्स द वेस्ट नो, सो वो बहुत ज्यादा डिसिकेटिंग इफेक्ट देता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा सूखा सूखा हो जाता है, और वहां पे मॉइस्चर की कमी होती है, क्योंकि जब तक मॉइस्चर नहीं होगा तब तक साइक्लोन नहीं होंगे, है ना, बिकॉज साइक्लोन के लिए भी एक टेम्परेचर आपको चाहिए, पानी भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, फॉल्स भी होनी चाहिए. ओके, तो वो जैसे जैसे वेस्टर्न में मूवमेंट होगा हवा का, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट होता है, तो ईस्टर्डीज भी ईस्ट टू वेस्ट होता है, या ट्रेड विंड्स भी बोल सकते हैं, तो ईस्ट टू वेस्ट होगा, तो वहां तक जाएगा तो वो सूख जाएगा, तो इस वजह से उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा, एंड देयर ऑन वो साइक्लोन नहीं बन पाएगा. डिसाइड द नेम ऑफ द साइक्लोन, मतलब ये किसी प्लेस से ही जहाँ से होते ओरिजिनेट वहीं से नेम डिसाइड होता है, कि इसकी पहले से ही लिस्ट उस्ट तैयार रहती है? हाँ सर, ये लिस्ट बनी हुई है इनकी, हर कंट्री का कुछ है. यस, WMO प्लस UN एस्केप करके दो बॉडीज हैं, वो दोनों मिलके ये डिसाइड करती है साइक्लोन का कि नेमिंग क्या होगा. Okay, almost topics I guess discuss हो चुका है. I was not there actually, so I think everything is discussed, और कुछ बच गया अभी. हाँ, हो ही गया मैम लगभग सभी. Okay, cool. Then I think we should conclude now. No, it's already been more than 1 hour, I guess, है ना? तो इतना बहुत है. And बाकी कोई भी topics like left over हो गए या नहीं discuss होना है, तो we can do that in next session, right?
बट जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, थोड़ा साइक्लोन वाले टॉपिक्स हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे वाटर के अंदर जो माइनर रिलीफ्स है दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। बाकी मतलब कुछ टॉपिक्स यू कैन लीव, मतलब एक बार बस थोड़ा सा कंसिडरेशन रखो, बट द थिंग इज कॉरियोलिस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन को अच्छे से करना, वेस्टर्लीज ट्रेड विंड्स, ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे हमने कल लैंडफॉर्म्स को किया था, बट आज तक यूपीएससी ने उस पर सच कुछ पूछा नहीं है, अंटिल एंड अनलेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस और सीएपीएफ, वहां पे तो दे डायरेक्टली शूट द क्वेश्चन। बट आईपीएस ना सीएससी एग्जाम में ऐसा अभी इतना नहीं है, तो इन दैट केस आप उसको थोड़ा लाइटर नोट पे लेके, एंड ये जो टॉपिक्स है आज वाले जो टॉपिक्स है वो एक्चुअली में हैवी उनका वेटेज है, वो टॉपिक्स थोड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एंड विल लिस्ट कुछ और टॉपिक्स वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, लेट मी कंक्लूड।